Good morning, students. Now we have discussed the production function in the previous class, and we have seen the law of variable proportion as well as the causes of different stages of returns. So far we have also discussed the relation between total product, average product and marginal product with the help of curves. We have seen that how these are related to each other. Now the next important topic, the chapter that we are going to discuss from now onwards is the cost. So today we will discuss about the cost, the meaning of cost and different types of cost, okay, that is used while producing the goods and services by a firm, by the entrepreneurs. So that we are going to discuss today. So cost, what is cost? Cost refers to the expenditure incurred on the factor inputs as well as non-factor inputs utilized in the production of goods and services. Now all of us are knowing that in the production of goods and services expenditure is needed. ऐसा नहीं है कि goods and service को जब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो फ्री में प्रोड्यूस हो जाता है, ऐसा नहीं है. उसमें हम लोग को खर्च लगता है, उसमें हम लोग को खर्च करना पड़ता है, एक्सपेंडिचर करना पड़ता है. उसके बाद जो है कोई गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है. तो जो खर्च होता है ना, उसी को हम लोग कॉस्ट बोलते हैं. कोई चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, कोई गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए उसके ऊपर में जो एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्च होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट इन द सिंपल टर्म. कॉस्ट में जो है आपको दो तरह का आपको यहाँ पे कॉस्ट बोला गया है. एक है फैक्टर इनपुट्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स, यानी कि फैक्टर इनपुट्स और नॉन फैक्टर इनपुट्स, ये दोनों के ऊपर में जो खर्च होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है, वो आपको कॉस्ट के अंदर में आ जाएगा. तो फैक्टर इनपुट्स में क्या आएगा? फैक्टर इनपुट्स में आपको लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. हम सभी जानते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स. दीज आर द four factors of productions, and the expenditure incurred on these factors of production as well as the expenditure done on non-factor inputs like raw material, okay, raw materials, electricity, which is used to start the machines, which is used in the factories, in the for the production of goods and services by the machines. Electricity is needed, energy is needed. Then transportation जो खर्च होता है, यानी कि यदि मार्केट पहुंचाने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, या फिर वन इन्वेंट्री से दूसरा इन्वेंट्री, वन फर्म से दूसरा फर्म के पास यदि आपको ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है, या फिर रॉ मटेरियल्स लाने के लिए जो आपको ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है. All these type of expenditure are non-factor inputs expenditure. So in the cost, factor inputs expenditure as well as non-factor inputs expenditure both are included. Both are the part of cost of production. So I hope कि cost का मतलब आपको समझ में आ गया होगा. So cost refers to the expenditure incurred on the factor inputs as well as non-factor inputs utilized in the production of goods and services. Now next one is cost function. We have seen the production function. Now one more term is there, cost function. Cost तो हम लोग समझ गए cost क्या होता है. जो हमको इनपुट के ऊपर में जो एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्च होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट. अब कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, यानी कि कॉस्ट जो है किस चीज़ के ऊपर में आपको डायरेक्टली डिपेंडेंट रहता है, उसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे. तो कॉस्ट फंक्शन यहाँ पे क्या बता रहा है कि इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट. इट इज एक्सप्रेस एज C इक्वल टू फंक्शन ऑफ Q. So it is the functional relationship between cost and output, यानी कि C is the function of Q. ठीक है, Q क्या है? आउटपुट है. where C is cost of production, Q is the quantity of output. यानी कि जितना ज़्यादा क्वांटिटी आप बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा क्वांटिटीज़ को आप प्रोड्यूस करेंगे, उतना ज़्यादा कॉस्ट आपको लगेगा. यानी कि कॉस्ट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड क्वांटिटी इज independent variable, and this relationship is known as cost function. ये दोनों के बीच में जो आपको एक फंक्शनल रिलेशनशिप है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन.
सो सी इज द फंक्शन ऑफ क्यू, मीन्स क्यू के ऊपर में सी का वैल्यू डिपेंड करता है। यदि क्वांटिटीज, यदि क्यू, यदि आउटपुट को बढ़ाया जाएगा तो आपको कॉस्ट भी ज़्यादा खर्च होगा। ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा खर्च जो है आपको लगेगा ही। सो दिस इज अबाउट द कॉस्ट फंक्शन। Now cost can be divided into two parts, implicit cost and explicit cost. Implicit cost and explicit cost. Cost को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब implicit cost किसको बोलते हैं? Implicit cost हम लोग उस कॉस्ट को बोलते हैं जो सेल्फ ऑन्ड होता है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेस का जो खर्च है, या फिर जो इंटरप्रेन्योर्स जो है, जो मैनेजर है, वो खुद अपने वो खुद वर्क कर रहा है, वो अपना सर्विस दे रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो कॉस्ट वो इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलेंगे। या जो ऑनर है उसका खुद का जो बिल्डिंग है उसको यूज किया जा रहा है, उसका खुद का जो ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, उसको प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए, गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए जो है उसको यूज किया जा रहा है। तो ये सब इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं, यानी कि बाहर से इस कॉस्ट को, ये बाहर का कॉस्ट नहीं है, यानी कि बाहर से गुड्स एंड सर्विसेज को, रॉ मटेरियल्स को यहाँ पे नहीं लिया गया है, बाहर पेड नहीं किया गया, यानी कि पेड जो है खुद को करना है, उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। सो इम्प्लिसिट कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ सेल्फ ऑन्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज बाय द फर्म। जैसा कि आप बोलिए, यदि जो इंटरप्रेन्योर है, जो आपको जो पर्सन, जो बिजनेसमैन है, वो खुद जो अपना वर्क दे रहा है, ठीक है, उसके ऊपर में जो खर्च हो रहा है उसके ऊपर वो होगा इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गया। या फिर जो जैसा कि पहले हम बताए, जो लैंड है, जो ज़मीन है, उसके ऊपर फैक्ट्री बनाया है, वो ज़मीन किसका है? तो ऑनर का है, ठीक है। तो उसके ऊपर में उसको जो है दूसरा को पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो उस कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट किसको बोलते हैं? इसका जस्ट आपको अपोजिट हो जाएगा इम्प्लिसिट का। एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर द कैश पेमेंट्स मेड बाय द फर्म्स टू आउटसाइडर्स फॉर द परचेज और हायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो एक बिजनेस पर्सन है, एक बिजनेसमैन है, यदि वो कोई गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए एक जो है फैक्ट्री बनाया, फैक्ट्री जो बनाया वो किसी और के ज़मीन पे बनाया, किसी और के लैंड पे बनाया है, तो उसको जो है रेंट देना पड़ेगा, तो दूसरा को रेंट देगा, तो वो जो रेंट हो गया एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गया। उसी तरह से जब रॉ मटेरियल्स को खरीदा, ठीक है, यदि मान लो कि एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है, जहाँ पे क्या होता है, आपको जो है पोटैटो चिप्स बनता है, आलू का चिप्स बनता है, तो फार्मर्स जो पोटैटो लिया गया है चिप्स बनाने के लिए, तो फार्मर्स को पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो जो पोटैटो खरीदने के लिए जो आपको एक्सपेंडिचर किया गया वो हो गया आपको एक्सप्लिसिट कॉस्ट, वो एक रॉ मटेरियल्स हो गया। फिर उस पोटैटो से जो है चिप्स बनाया जाएगा, फिर उसको बेचा जाएगा, मार्केट में लाया जाएगा। तो यहाँ पे एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गया, जो आपको फार्मर से रॉ मटेरियल्स खरीदा वो हो गया एक्सप्लिसिट कॉस्ट। उसी तरह से यदि कोई लेबर का सर्विसेज ले रहा है, यदि कोई लेबर को हायर किया है कंपनी वर्क करने के लिए, और जो उसका सर्विस लिया, आपको लेबर का वर्क लिया है, उसके बदले में जो आपको वेज या सैलरी दिया गया, पेमेंट किया, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब जो खुद का कॉस्ट है, जो खुद का जो आपको मैन पावर हो या फिर जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट है, उसको यूज किया जा रहा है फॉर द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट उस कॉस्ट को बोलते हैं जो बाहर में जो है दिया जा रहा है, दूसरा को पेमेंट किया जा रहा है, ठीक है, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को हायर किया गया बाहर से, उसके बदले में जिसको पेमेंट किया, उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट हम लोग बोलते हैं। ना चलिए अब हम लोग देखते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। शॉर्ट रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे शॉर्ट रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या शॉर्ट रन क्यों बोले, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ शॉर्ट रन टर्म जो है, शॉर्ट रन वर्ड जो है, इसको हम लोग ऐड किए हैं। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा सपोज करना है कि जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हो रहा है वो आपको शॉर्ट रन में हो रहा है, टाइम कम है, ठीक है, ये लॉन्ग पीरियड की बात नहीं कर रहे हैं। यानी कि यदि शॉर्ट रन है तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल फैक्टर्स होगा एंड कुछ फिक्स फैक्टर्स होगा। हम लोग इसे पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं, वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स फैक्टर्स के बारे में। तो यदि शॉर्ट रन जैसे ही हम आपको यहाँ यूज किया, तो आपको दिमाग में एक चीज़ आपको डाल लेना है, वो ये डाल लेना है कि यहाँ पे फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स, दो तरह का फैक्टर्स यहाँ पे यूज किया जाएगा प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए। लेकिन जब आपको लॉन्ग रन आपको होगा, जब लॉन्ग पीरियड आपको टर्म यूज किया जाएगा, तो आपको समझ लेना है कि लॉन्ग रन में केवल वेरिएबल फैक्टर्स को यूज किया गया, क्योंकि वहाँ पे फिक्स फैक्टर्स भी वेरिएबल फैक्टर्स से हो जाता है,
एक प्रॉपर्टी जो है वो भी आपको वेरिएबल फैक्टर्स ही हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो है इसको हम लोग देखते हैं, तो कुछ टर्म हम लोग देखते हैं अभी। सो शॉर्ट टर्म कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट कीपिंग सम फैक्टर्स वेरिएबल एंड सम फैक्टर्स फिक्स्ड। ना कुछ टर्म्स हम लोग देखते हैं। टोटल कॉस्ट पहला, टोटल कॉस्ट refers to sum of all expenditures incurred by the producer in producing a given quantity of a commodity. In short period, total cost comprises of fixed cost and variable cost. Fixed cost है variable cost, यहाँ पे fixed cost होगा आपको, fixed cost है variable cost, तो ठीक है। तो शॉर्ट टोटल कॉस्ट जो होता है, टोटल कॉस्ट शॉर्ट रन में आपको इसमें दो तरह का कॉस्ट रहता है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग उस कॉस्ट को बोलेंगे जो फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर में खर्च किया गया है, और वेरिएबल कॉस्ट हम लोग उस कॉस्ट को बोलेंगे जो वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर में खर्च किया गया है। यानी कि यदि एक बिल्डिंग बनाने में, एक फैक्ट्री का, एक फर्म का, एक आपको प्लांट बनाने में, एक बिल्डिंग बनाने में जो खर्च हुआ वो आपको फिक्स फैक्टर के ऊपर में खर्च हुआ, तो वो हो गया फिक्स्ड कॉस्ट। प्लस एक लेबर को जो यूज किया गया है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए, वर्क करने के लिए आपको फैक्ट्रीज में, तो उसके ऊपर में जो खर्च किया गया वो हो गया वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। व्हेन वी ऐड फिक्स्ड कॉस्ट and variable cost, it becomes total cost. So total cost is the overall expenditure of the firm, okay, for the production of goods and services. So in total cost, fixed cost as well as variable cost, both types of cost are included. ये आपको याद रखना है। यहाँ पर चलिए एक फार्मूला को आप देख लीजिए। Total cost equal to total fixed cost plus total variable cost. TFC means total fixed cost and TVC means total variable cost. Fixed costs are those costs which do not change with change in the level of output. जैसा कि पहले हम बताया कि जो fixed cost होगा that will not change while increasing the output. Output level को यदि आप बढ़ा रहे हैं तो fixed cost change नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। शॉर्ट रन में आपके पास उतना टाइम नहीं रहता है कि आप फिक्स्ड फैक्टर को आप चेंज कर सकते हैं, इसलिए बोलते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट इज द फिक्स्ड। आप प्रोडक्शन नहीं भी कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस नहीं भी किए, फिर भी जो आप फैक्ट्रीज बनाए हैं, आप जो प्लांट बनाए हैं, आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए हैं, उसमें तो खर्च आपको होगा ही। ठीक है। चाहे आपका प्रोडक्शन जीरो है फिर भी तो फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड रहता है। ठीक है। आपको प्रोडक्शन चाहे जीरो हो चाहे आपको 100 हो, उससे उसको मतलब नहीं है। जो खर्च फिक्स कॉस्ट पे हो गया सो हो गया। हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। द वेरिएबल कॉस्ट रेफर्स टू दोज कॉस्ट व्हिच चेंज विद द चेंज द लेवल ऑफ आउटपुट। नाउ इफ यू वांट टू इंक्रीज द आउटपुट, व्हाट यू विल डू, यू विल इंक्रीज द वेरिएबल फैक्टर्स, एंड इफ यू आर इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स टू इंक्रीज द आउटपुट, इट मीन्स देयर इज वेरिएबल कॉस्ट। तो यदि आउटपुट बढ़ाएंगे आप, यदि आउटपुट बढ़ेगा तो कौन सा कॉस्ट बढ़ेगा? वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड रहेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ शॉर्ट रन की बात करते हैं। शॉर्ट रन में फिक्स्ड फैक्टर्स को हम लोग नहीं बढ़ाएंगे, केवल हम लोग वेरिएबल फैक्टर्स को ही बढ़ाएंगे। चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ग्राफ देखते हैं कि इसका कर्व जो है, इसका कर्व जो है किस टाइप का कर्व होता है, कर्व का क्या नेचर है फिक्स्ड कॉस्ट का। यहाँ पे एक शेड्यूल दिया गया है, आउटपुट यूनिट्स में दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4 एंड फिक्स्ड कॉस्ट दिया है 20, 20, 20, 20 एंड 20। नॉट सरप्राइज, इट इज नॉट सरप्राइज थिंग्स। फिक्स्ड कॉस्ट इज 20, 20, 20 मीन्स नॉट चेंजिंग, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होगा। हम लोग शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। शॉर्ट रन में जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स रहेगा, चाहे आउटपुट 0 हो, जैसा कि पहले भी हम बताए, आउटपुट 0 हो चाहे आपको आउटपुट 4 हो, फिक्स्ड कॉस्ट आपको कितना है? 20 है। सभी के केस में फिक्स्ड कॉस्ट आपको 20 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखे, हम लोग क्या चीज़ सीखे कि फिक्स्ड कॉस्ट का वैल्यू जो है शॉर्ट रन में आपको फिक्स रहेगा, वो आपको कांस्टेंट रहेगा, वो आपको चेंज नहीं होगा। यानी कि इसका कर्व जो होगा वो भी कांस्टेंट टाइप का होगा, वो आपको चेंज नहीं होगा। आउटपुट इंक्रीज होने से वो आपको चेंज
नहीं होगा। आउटपुट 0 से 4 तक भी जाएगा, फिर भी फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा आपको 20 रहेगा। तो आउटपुट 0 है, फिक्स्ड कॉस्ट 20 है। आउटपुट 1 हुआ, फिक्स्ड कॉस्ट 20 हुआ। तो फिक्स्ड कॉस्ट का हम लोग कैसे बनाएंगे कर्व? इस तरह से आप बना सकते हैं। ये हो गया आपको फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे आप नीचे में देंगे आउटपुट, यहाँ पे आपको आउटपुट बढ़ने से आपको, और यहाँ पे आपको कॉस्ट होगी, कॉस्ट होगी। आउटपुट बढ़ने से फिक्स कॉस्ट क्या हो रहा है? नहीं बढ़ रहा है, वो आपको फिक्स है। यहाँ भी उतना ही है, यहाँ भी उतना ही है, वहाँ भी उतना ही है। ये आप देख सकते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का यहाँ पे कर्व, ठीक है। When output was 1, fixed cost was 20. Even when output was 0, that time also fixed cost was 20. When output increases to 20, means now we are producing two goods. That time also fixed cost, value of fixed cost is 20. Now when we are increasing output to 3, now still fixed cost is 20. Again in case of 4, fixed cost is 20. Again in case of 5, fixed cost is 20. Means fixed cost is fixed. इसलिए इसका नाम है फिक्स्ड आपको, क्योंकि ये आपको चेंज नहीं होता है। ये आपको लॉन्ग रन में चेंज हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट रन में ये चेंज नहीं करेगा। तो आई होप कि यदि आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का आपको कर्व बनाने के लिए बोला जाए तो आप इजीली बना सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे इजीली हम लोग यहाँ पे देखे डिस्कस किए कि किस तरह से फिक्स्ड कॉस्ट का वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहता है। आउटपुट लेवल इंक्रीज होने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए हम लोग टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे देखते हैं। हम लोग अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान देंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको समझना। जब आउटपुट आपको 0 हो रहा था तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपको 0 था, क्योंकि यदि आउटपुट कुछ प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा है तो हम लोग लेबर को हायर क्यों करेंगे? लेबर को हायर करने का जरूरत नहीं है। इसलिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है? आपको 0 है। यानी कि यहाँ पे चेंज इन मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट की हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि एक लेबर को जब हम लोग हायर करेंगे तो उसमें जो कॉस्ट हम लोग को लगेगा, उसके ऊपर में जो हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा, वो आपको मार्जिनल कॉस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा ना। जैसे हम लोग एक लेबर को हायर किए तो आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया 10 एंड मार्जिनल कॉस्ट भी हुआ 10, क्योंकि एक ही लेबर, यहाँ पे एक लेबर को ही हायर कर रहे हैं, उसके ऊपर में जो कॉस्ट हो रहा है उसको लोग मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। और चूंकि एक ही लेबर है तो वही हो गया टोटल कॉस्ट भी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी हो गया, तो 10 हो गया। जैसे हम लोग सेकेंड लेबर को हायर कर रहे हैं तो आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया 18 हो गया, और मार्जिनल कॉस्ट हुआ 8। देखिए मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे घट रहा है, इसको ध्यान से आप जो है इस पे ध्यान दीजिए। जब एक लेबर था तो उसके ऊपर में कितना खर्च हो रहा था? 10 रुपया खर्च हो रहा था, 10 रुपीज़। और जब सेकेंड लेबर को हम लोग हायर किए तो उसके ऊपर में केवल 8 रुपीज़ ही खर्च हो रहा है। क्यों मालूम है? क्योंकि हम लोग पढ़े थे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में लोग पढ़े थे कि जैसे हम लोग स्टार्टिंग में जैसे हम लोग लेबर को हायर करते हैं तो उसका जो आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होता है, उसका जो कंट्रीब्यूशंस होता है वो बढ़ते जाता है। यानी कि पहला लेबर जब हम लोग हायर कर रहे हैं तो उसका जितना कंट्रीब्यूशंस है, सेकेंड लेबर का उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस होगा, थर्ड लेबर का उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस होगा, और फिर धीरे धीरे फिर क्या होगा? फिर घटना चालू हो जाएगा। तो चूंकि इंक्रीजिंग रिटर्न्स यहाँ पे हो रहा है, तो जब पहला लेबर हम लोग हायर किए थे तो उसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम था, तो इसीलिए 10 रुपया उसके ऊपर में खर्च हो रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही सेकेंड लेबर आया तो उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो इसीलिए कॉस्ट जो है केवल 8 ही पर है हम लोग। यानी कि उसका जो है आउटपुट जो है वो ज़्यादा दे रहा है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे 2 रुपया कम उसके ऊपर में हम लोग को खर्च हो रहा है। कॉस्ट जो है कम पर है क्योंकि मुनाफा वो ज़्यादा दे रहा है, ठीक है। 2 रुपया ज़्यादा मुनाफा वो दिया, इसलिए 2 रुपया हम माइनस कर दिए इसमें से। फिर जब तीसरा लेबर हम लोग हायर कर रहे हैं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 24 हो गया, ठीक है। 18 के बाद 24 हो गया, यानी कि कितना बढ़ा? 6 बढ़ा। यानी कि तीसरा जो आपको लेबर हायर किया गया है तो उसके ऊपर में कितना रुपया खर्च हम लोग को करना पड़ा? 6 रुपीज़, केवल 6 रुपीज़। क्यों? क्योंकि उसका जो है कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, सेकेंड से ज़्यादा उसका कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इसमें से 4 रुपया ज़्यादा मुनाफा दिया वो सेकेंड से, इसलिए यहाँ पे हम लोग 6 किए, यानी कि 10 में से 4 को हम लोग माइनस कर दें। सॉरी, पहला वाला से 4
ये आपको ज़्यादा मुनाफा दी, इसलिए 10 में से हम लोग 4 को माइनस किए तो 6 हो गया। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कम होते जा रहा है। पहला में 10 था, दूसरा में 8 हो गया, यानी कि 2 यहाँ पे कम हो गया, फिर तीसरा में 6 हो गया, यहाँ भी आपको 2 कम हो रहा है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट यहाँ कम होते जा रहा है। क्यों? ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के चलते। लेकिन फिर 4th लेवल हम लोग हायर किए, उसके ऊपर हम लोग को जो है मार्जिनल कॉस्ट कितना पर है? 4 पर है, और कम हो गया। फिर यहाँ पे 5वां भी 4 रहा, लेकिन उसके बाद चूँकि अब जो है मशीन जो है अपना कैपेसिटी में, फुल कैपेसिटी में वर्क जो है अब हो चुका है। अब यदि हम लोग एक्स्ट्रा यदि हायर कर रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड है, और एक्स्ट्रा लेबर को यदि यूज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? उसका जो आपको एफिशिएंसी है मशीन्स का वो आपको कम होते जाएगा, और जो आपको कंट्रीब्यूशंस है लेबर का वो आपको कम होते जाएगा। यानी यदि कम कंट्रीब्यूशंस हो रहा है तो इसका मतलब कॉस्ट हम लोग को ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को सैलरी भी देना पड़ेगा, वेज उसको देना पड़ेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को जो है कॉस्ट बढ़ते जाएगा उसके ऊपर में। तो यही है, देखिए अब कॉस्ट यहाँ बढ़ने लगा, 6 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 12 हो गया। तो यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट में हम लोग जो यहाँ देख रहे हैं बढ़ रहा है, 0 से 10, 18, 24, 28, 32 ये बढ़ते जा रहा है। तो ये इसको ऐड करने से ये बढ़ा है, सबको जब ऐड कर दे रहे हैं तो ये आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट बन रहा है। ठीक है, पहले कुछ नहीं था 0, फिर आपको 10 हुआ तो 10 हो गया, फिर आपको सेकेंड लेबर 8 हुआ तो 10 + 8 18 हो गया, फिर तीसरा लेबर आने से 6 कंट्रीब्यूशंस उसका 6 कॉस्ट उसके ऊपर में लगा, तो फिर उसको 6 ऐड कर दिया तो 24 हो गया, फिर चौथा लेबर आने से 4 रुपया उसके ऊपर में खर्च हो रहा है मार्जिनल कॉस्ट, फिर 4 ऐड कर दिया 28। इस तरह से जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट आप निकाल सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट से। मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करते जाएंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकलते जाएगा। यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट में हम लोग क्या चीज़ देखें कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट 2 तरह से बढ़ रहा है। पहले क्या बढ़ा था? पहले आपको ये डिक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा था, कॉस्ट जो है कम होते जा रहा था। ठीक है, उसके बाद एक जगह पे कांस्टेंट हुआ 4 के बाद, और फिर उसके बाद फिर वो इंक्रीजिंग रेट में बढ़ने लगा, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है फिर वहाँ से बढ़ना चालू हो गया। तो इसका कर्व हम लोग किस तरह से देखेंगे? इस तरह से कर्व इसका होगा। यहाँ पे देखिए, पहले आपको पहले डिक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और फिर जो है इंक्रीजिंग रेट में आपको बढ़ रहा है। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम लोग जो टोटल कॉस्ट का हम लोग जो टोटल प्रोडक्ट का जो हम लोग कर्व बनाए थे उसका देखिए जस्ट ये अपोजिट टाइप का है। ठीक है, उसमें क्या था? पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स था, फिर आपको डिमिनिशिंग रिटर्न्स था। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पहले कॉस्ट जो है मार्जिनल कॉस्ट आपको क्या हो रहा था? घट रहा था, धीरे धीरे घट रहा था, इसीलिए इसका स्लोप जो है इस टाइप का आपको है। और फिर जो है एक जगह 4 के बाद जो है 4 आउटपुट आने के बाद क्या हुआ? ये बढ़ना चालू हो गया, इसलिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हुआ? इंक्रीजिंग रेट में बढ़ने लगा। ठीक है, काफ़ी रफ्तार में बढ़ने लगा। तो ये आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो है कर्व है। तो हम लोग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों का कर्व आज हम लोग डिस्कस किए हैं, कर्व हम लोग देखे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी तरह का डाउट आपको है then you are free to ask me questions, you are free to ask me doubts in the WhatsApp group. Thank you. This is all about today's class.